Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to discuss about topic 3.2 from Unit 3, which is based on feedback amplifier. In this today's session, we are going to discuss about types of feedback amplifier. So let's start with some learning outcome. Before going to in detail about the learning outcomes for today's session, we just look into the course outcome and its PO mapping. PO mapping मतलब होता है प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. The course outcome for this unit number 3, that is feedback amplifier, is use BJT as a feedback amplifier. मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये हमें यूज़ करना है फीडबैक एम्पलीफायर बनाने के लिए. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फीडबैक क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. Now, the course outcome is mapped with program outcome and its mapping is here. In this table, it shows that this course outcome is mapped with this 10 number of POs, right from PO1 to PO10. I map this PO1 with the course outcome at a level 1. मतलब ये जो PO नंबर 1 है वो रिलेट करता है बेसिक नॉलेज के रिलेटेड. तो इस पर्टिकुलर कोर्स आउटकम को PO1 से अगर अपने को मैप करना है तो अपन 1 लेवल से मैप करेंगे. PO2 जैसे ही डिसिप्लिन नॉलेज के रिलेटेड होता है तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन के रिलेटेड इसके रिलेटेड अपना नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मैप किया है वो एट अ लेवल 3 से मैप किया है. सिमिलरली PO नंबर 3 विच इज यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस एंड इज मैप फॉर द level 3. PO4 engineering and tools is mapped at a level 2, and similarly PO10, that is lifelong learning, is mapped at a level 1. Now here it shows the learning outcome for today's session. Means आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी लोग ये लर्निंग आउटकम अचीव कर सकते हैं. Very first one is understand the concept of sampling and mixing. Sampling और mixing क्या होता है ये आगे हम पढ़ने वाले हैं. Second, classify the types of negative feedback amplifier. आज हमें नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स पढ़ना है. उस टाइप में से आज हम वेरी फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जो है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर. थर्ड, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर. आज का सेशन खत्म होने के बाद आप सभी लोग ब्लॉक डायग्राम वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर की निकाल सकते हो. उसी तरह वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हो. So this is all about the learning outcome, or it may called as a session outcome for today's lecture. So शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो बेस है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के ऊपर. Before going to in detail about the voltage shunt feedback amplifier, you all must to know about the advantage of negative feedback. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं कि क्यों हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं. तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव फीडबैक से जैसे कि बैंडविड्थ बढ़ती है, गेन स्टेबल रहता है,
या फिर नॉइज़ रिडक्शन होता है, ये सभी एडवांटेज है निगेटिव फीडबैक के। उसी तरह हम पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपेयर किया है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है। Now here it shows the types of negative feedback. The very first types of negative feedback amplifier is voltage shunt feedback amplifier. Second one is voltage series feedback amplifier. Third, current shunt feedback amplifier. And fourth, current series feedback amplifiers. These all are the types of negative feedback amplifier. जैसे वेरी फर्स्ट है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, सेकंड वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, थर्ड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, फोर्थ करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ये चारों टाइप्स निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के हमें 1 बाय 1 इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हमारा टोटली बेस है इस फर्स्ट टाइप पे, जो है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। See, this is the types of voltage shunt feedback amplifier, and this shows the block diagram of voltage shunt feedback amplifier. This block diagram is very much important for the MSBT exam, because number of times this particular question is asked in MSBT exam. So this is the block diagram of voltage shunt feedback amplifier. Dear student, आज हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। तो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर अपन क्यों बोलेंगे इसको, तो ये हमें आज पढ़ना है। तो आप सभी को फीडबैक यानी क्या होता है ये पता है, फिर भी मैं आज फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे कि ये अपना एक एम्पलीफायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर है ये मैंने ब्लॉक द्वारा यानी एक ब्लॉक द्वारा यहाँ पे शो किया है। मान लीजिए कि ये एक सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर मतलब होता है सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और सिंगल स्टेज मतलब जिसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर अपन यूज करते हैं। यहाँ से अपन इनपुट देंगे, ओके। दिस Vs means it is a source voltage. Vs represent it is source voltage. This is Vi. Vi represents it is input voltage. Similarly here Vo represent it is output voltage, and we take this output voltage across this load resistance, यानी ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ही हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो अभी यहाँ से जब हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। इस पूरे आउटपुट का मान लीजिए कुछ परसेंटेज या फिर कुछ सैंपल हमने यहाँ से लिया और ये फीडबैक सर्किट द्वारा, दिस इज फीडबैक सर्किट और इट मे कॉल्ड एज अ फीडबैक नेटवर्क, इस फीडबैक नेटवर्क द्वारा फिर से हमने इस इनपुट के साथ जोड़ दिया। तो हमने इस आउटपुट में से कुछ परसेंटेज यानी आउटपुट का कुछ परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं सैंपल, तो यहाँ से कुछ आउटपुट का हमने सैंपल लिया और इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा फिर से इस इनपुट के साथ मिक्स किया। तो मुझे यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है कि यहाँ से अगर अपन सैंपल लेते हैं तो यहाँ पे यानी आउटपुट साइड में यानी इस एम्पलीफायर के आउटपुट साइड में हमेशा सैंपलिंग टेक्निक फॉलो की जाती है, क्योंकि हम यहाँ से सैंपल ले रहे हैं और इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा या फिर फीडबैक सर्किट के द्वारा हम इनपुट के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसलिए इनपुट साइड में मिक्सिंग टेक्निक फॉलो की जाती है। वन मोर टाइम आई रिपीट हियर कि आउटपुट साइड में हम यहाँ पे सैंपलिंग टेक्निक फॉलो करेंगे और इनपुट साइड में हम यहाँ पे मिक्सिंग फॉलो करेंगे, ओके। अभी बात यह है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर मतलब यहाँ से अपने को जो सैंपल लेना है वो सैंपल लेना है
वोल्टेज। कौन सा सैंपल लेना है? वोल्टेज। तो वोल्टेज हमेशा जब अपन सैंपल लेंगे यहाँ से तो वोल्टेज हमेशा अपन शंट में लेंगे। किस में लेते हैं? शंट। यानी ये देखिए पैरेलल कनेक्शन किया मैंने यहाँ पे, यानी ये ऊपर यहाँ पे कनेक्शन किया, यहाँ पे जंपर डाल के इस तरह से इधर कनेक्ट किया है, और दूसरा यहाँ पे कनेक्शन किया है और ये यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार की जो कनेक्शन रहेगा इसको अपन पैरेलल कनेक्शन या फिर शंट कनेक्शन बोलते हैं। ओके, तो एक चीज आपको याद रखना है कि वोल्टेज हमेशा हम शंट में लेते हैं या फिर पैरेलल में लेते हैं। और इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा अभी अपन मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? इनपुट के साथ। तो हमने यहाँ से वोल्टेज लिया है और हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो हमें मिक्स जो करना है वो किसके साथ करना है? शंट कनेक्शन के साथ। इसलिए देखिए जहाँ वैसे यहाँ पे हमने शंट किया था तो यहाँ पे भी मिक्सिंग के वक्त हमने ये पैरेलल कनेक्शन यानी शंट कनेक्शन किया है। इसीलिए इस पूरे सर्किट को हम बोलेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, अभी ये जो फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट में ये जो बीटा दिख रहा है, दिस बीटा रिप्रेजेंट अ फीडबैक फ्रैक्शन। मतलब यहाँ से आपको कितना सैंपल लेना है, यहाँ से अगर अपने को 100% आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ से कितना परसेंटेज हम यहाँ से सैंपल ले रहे हैं। वो अगर सैंपल 10% है तो अपना जो बीटा है वो रहेगा 10%। अगर मैंने सैंपल 20% लिया तो बीटा रहेगा 20%। दिस बीटा रिप्रेजेंट अ फीडबैक फ्रैक्शन। दिस इज Vf। Vf मीन्स इट इज अ फीडबैक वोल्टेज। जो यहाँ से हमने फीडबैक लिया, वोल्टेज लिया है, वो रिप्रेजेंट करेगा Vf। और ये अब हमने कहा किसके साथ मिक्स किया है? इनपुट के साथ। Vf इक्वल टू बीटा इंटू Vo। बीटा मीन्स इट इज अ फीडबैक फ्रैक्शन एंड Vo मीन्स इट इज अ आउटपुट वोल्टेज। तो इस प्रकार के सर्किट को हम बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। नाउ यहाँ पे ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का टाइप है, इसलिए इनपुट और इस फीडबैक वोल्टेज में जो भी फेज शिफ्ट रहेंगी वो हमेशा 180 डिग्री रहेंगी। इसीलिए ये टाइप जो है ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। इन नेक्स्ट स्लाइड we just know about the important point based on this voltage shunt feedback amplifier. Very first one, voltage shunt feedback amplifier equal to voltage sampling plus shunt mixing। यानी voltage sampling यानी आउटपुट से हमने वोल्टेज लिया है, वोल्टेज का सैंपल लिया है और इनपुट के साथ किस में मिक्स किया है? शंट मिक्सिंग किया है, यानी इनपुट के साथ हमने शंट कनेक्शन में मिक्स किया है। वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर और शंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर। वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर को हम शंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। टेकिंग सैंपल ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन शंट और पैरेलल, यानी आउटपुट से जो भी हम वोल्टेज सैंपल लेते हैं वो हमेशा शंट कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन में ही होता है। और वो जो सैंपल है वोल्टेज सैंपल, वो हमें इनपुट के साथ किसमें मिक्स करना है? शंट या फिर पैरेलल कनेक्शन में। फीडबैक वोल्टेज जो Vf हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा वो और अपना इनपुट वोल्टेज, इन दोनों में हमेशा फेज शिफ्ट कितनी डिग्री होनी चाहिए? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तभी हम उस वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर को निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का टाइप है ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक इज 180 डिग्री, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आउट ऑफ फेज। Here I represent Vi इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, यानी Vi अपना इनपुट वोल्टेज है, Vo इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज यानी Vo अपना आउटपुट वोल्टेज है, Vf इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज यानी Vf अपना फीडबैक वोल्टेज है, एंड बीटा मीन्स इट इज अ फीडबैक फ्रैक्शन, यानी कितने परसेंटेज में आपने सैंपल लिया है
आउटपुट से, वो रिप्रेजेंट करेगा बीटा। Here it shows one advantage of voltage shunt feedback amplifier. The advantage is bandwidth is increases. voltage shunt feedback amplifier में bandwidth क्या होती है, increase होती है। And its disadvantage is, very first disadvantage is gain is decreases. voltage shunt feedback amplifier में gain decrease होता है। Input resistance is decreases. वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस। आउटपुट रेजिस्टेंस भी वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में डिक्रीज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। So here I summarize our today's video lecture. After completion of this today's lecture, we all are learned classify negative feedback amplifier, draw block diagram of voltage shunt feedback amplifier। यानी हमने नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स पढ़े, उसी को हम बोलेंगे क्लासीफाई किया हमने नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को। हमने वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम भी अच्छे तरीके से निकाली और उसको अंडरस्टैंड भी किया, यानी उसको हमने एक्सप्लेन किया वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर को, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें पता है। वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। So thank you so much for listening me carefully. I hope you understand very well for voltage shunt feedback amplifier. In next lecture, we will discuss about the voltage series feedback amplifier. Thank you so much and keep learning.